morning, students. Today we'll start a new chapter of economics, that is people as resource. In this chapter we'll do how the people can be a resource of the country. कैसे जो है मनुष्य जो है वो कंट्री का संसाधन हो सकते हैं. तो for this we will come to know that how the human capital is formed. First of all, ये कंट्री का एक एसेट है. अब जब ये एसेट बन जाता है तो how it can be formed, how the human capital is formed. It is formed through education, trained in some skills, provided with adequate medical nutrition. तो किसी भी कंट्री में जब नागरिक एजुकेटेड होगा, वो स्किल्ड होगा, ट्रेंड होगा और उसकी प्रॉपर मेडिकल केयर होगी, तो इट मीन्स इट इज़ टर्म्ड एज द ह्यूमन कैपिटल. तो एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्दी पीपल फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स. तो वो रिसोर्स हो जाएगी कंट्री को. ठीक है. अब पीपल एज रिसोर्स में इट रिफर्स टू द वर्किंग स्किल ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री. कंट्री के कार्य क्षमता वाले लोग कितने हैं उसको रिफर करता है. पीपल आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री. वो देश के लिए मजबूत हैं, मजबूती है, ताकत है लोग. इफ़ दे आर एजुकेटेड, इफ़ दे आर स्किल्ड, इफ़ दे आर हेल्दी, then they will help in promoting national income of the country. Human capital helps to generate physical capital of the country. Then it adds the productivity power of the country. किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी पावर उनसे बढ़ती है. फिर जब कंट्री में हायर प्रोडक्टिविटी होगी, इट विल लीड्स टू हायर इनकम. अब जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो जनरेट करता है फिजिकल कैपिटल बाय एंगेजिंग इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. You can see different economic activities by humans can be classified into three sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं. तो हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू वन अनदर. First of all, we go to the primary sector. Primary sector, the things where the people are directly related with land and nature and use the natural resources is known as primary sector. Secondary sector, where the raw material processed and converted into the final goods is known as secondary sector. Primary sector और secondary sector की help करता है tertiary sector. It provides goods and services to the people. It helps in development of primary and the secondary sector. In this way, we can say the primary sector, tertiary sector and secondary sector are interdependent to each other. They can't do their work without each other. Now बच्चों, हम सबसे पहले ले रहे हैं प्राइमरी सेक्टर. तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are directly related with land and nature, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है लैंड और नेचर से. कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इवन all this comes under the primary sector. Here you can see the primary sector: farming, fishing, mining. Secondary sector: building, processing food, manufacturing. Then tertiary sector: transport, banking, teaching, nursing. All this comes under the, all these are the sector, three sectors which are interdependent to each other. Now we'll come to the secondary sector. What is secondary sector? The economic activities which are related to the manufacturing process. For example, manufacturing steel falls under the secondary sector. यानी कि वो ऐसी आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ पे कच्चा माल मशीनों द्वारा अंतिम उत्पाद में बदल जाता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्रक बोलते हैं. वेयर द रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस मटेरियल एंड इनटू फाइनल गुड्स इज नोन एज अ secondary sector. It can be called as industrial sector, it can be called as manufacturing sector. इसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको हम विनिर्माण उद्योग भी बोलते हैं. तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें मशीन मेड गुड्स यू कह लो, इसमें मशीन मेड गुड्स बनते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्टर पे.
और वो सेक्टर है हमारा टेरिटरी सेक्टर। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा योगदान है बिकॉज इट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल, क्योंकि ये लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सोसाइटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि समाज में अपनी सेवाएं देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक बैंकिंग, लाइक इंश्योरेंस, it all come under the tertiary sector. You can see in the picture also. Here you can see the people working in bank. It means the bank people are providing services to the people. You can see the bus over here. The bus is providing transport facilities to the people. Then the people working in some insurance company, and they again providing the services to the people. Is it clear? इट मीन्स मेन काम जो टेरिटरी सेक्टर का, तीसरे क्षेत्र का, वो क्या है, लोगों को अपनी सेवाएं देना। तो इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर? बिकॉज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक बैंकिंग, लाइक इंश्योरेंस, दैट फॉल्स अंडर द टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, नाउ यू कैन सी टेरिटरी सेक्टर क्या करता है। It provide the tourism facilities to the people, it provide trade facilities to people, it provide transportation to the people. ठीक है, टूरिज्म से क्या होगा, लोग जो हैं घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, एक देश से दूसरे देश भी टूरिज्म के लिए जाते हैं, या व्यापार करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो जब लोग टूरिज्म में आते हैं तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। तो जो टूरिज्म है उसको कौन बढ़ावा देता है, टेरिटरी सेक्टर तो देती है बच्चों, बिकॉज इस प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू द पीपल। ठीक है, देन इट प्रोवाइड ट्रेड टू द पीपल। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी कंट्री की क्या बढ़ती है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि भाई जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, health of a person indicated by life expectancy, then skill formation acquired by the people of the country. तो तीन तरीके से हम कंट्री की पॉपुलेशन को, गुणवत्ता को जान सकते हैं। पहला है लिटरेसी रेट, यानी कि व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, पहले भी मैं क्लास में बता के रही हूँ, केरल इज अ स्टेट इन द कंट्री जहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। देन हेल्दी पीपल हैं कि नहीं है कंट्री में, अगर कंट्री में हेल्दी पीपल हैं तो वो इंडिकेट करता है कि कंट्री की पॉपुलेशन अच्छी है। देन अगर कंट्री में स्किल्ड पीपल हैं तो वो भी बताता है कि पीपल क्या है, कंट्री की अच्छी क्वालिटी ऑफ पीपल यहाँ पर हैं। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले इट प्रोड्यूसेस स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स। अगर एजुकेटेड पीपल होंगे तो वो कैसे होंगे, वो स्किल्ड भी होंगे और ट्रेन्ड वर्कर्स भी होंगे। भाई अगर सपोज मैं ही हूँ कि आई एम अ टीचर, तो आफ्टर अटेनिंग माई एजुकेशन व्हाट आई एम डूइंग, मैंने बीएड किया, देन बीएड करने के बाद मैं एजुकेशन में यानी कि टीचिंग लाइन में आ गई, तो इट मीन्स आई एम अ ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री, एक एसेट हूँ मैं कंट्री के लिए। देन जो ह्यूमन कैपिटल, जो एजुकेशन वाले लोग होंगे वो कंट्री की नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, कंट्री की कल्चर को बढ़ाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। फिर सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज होएगा। जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो मॉडर्नाइज एटीट्यूड हो जाएगा लोगों का, सोशल सेटअप होंगे, सोशल गैदरिंग्स होंगी, लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। तो इट मीन्स जो रोल ऑफ एजुकेशन है, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर द रोल ऑफ एजुकेशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट? आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा आज की वीडियो, मेरी वीडियो। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।